करता हूँ। अरोड़ा मैम, बेटा हमने कल, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा. Yesterday we have completed the first question. Now I am taking the fifth part of first question. Relation are in a set A of human beings set down at a particular time given by. Relation they have mentioned are equal to x, y such that x and y हेलो at same place. Hello. अरोड़ा मैम, are you there? At the same place. देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है ये रिलेशन दे हैव मेंशन x and y work at the same place. I am solving only one part and remaining part you will do yourself. देखिए x is a human being. For reflexivity, देखिए बेटा x will work with himself only. Human being खुद के साथ तो काम करेगा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. हेलो सर, बहुत आवाजें आ रही हैं. देखिए x will work with himself, so it is reflexive. X will work with himself so x is related to x or every x belongs to R. For symmetry with यह देखना कितनी आवाज आ रही है इसमें देखना. For symmetricity, just check if x works with him but with y. If x work with y, then y work with x also. बच्चे वेट कर रहे हैं, अपना को करो ना, स्पीकर ऑन करके आओ ना. देखो बेटा x जो है अगर y के साथ काम कर रहा है तो x और y बोथ आर वर्किंग इन सेम लोकेलिटी. They both are working at the same locality. यानी कि x y के साथ काम कर रहा है तो y किसके साथ काम कर रहा है, x के साथ काम कर रहा है, तो it is symmetric. So transitivity, Excuse me, sir, बहुत disturbance हो. But I am also feeling that so many disturbance. I don't know. जब एक बार सर ये TCS वाला मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आवाज आ रही है. अभी भी जाए बेटा. TCS वाला माइक with y and y work with z. इसका मतलब क्या है कि x जो है y के साथ काम करता है और y z के साथ काम करता है, यानी कि एक ही लोकेलिटी पे काम कर रहे हैं. सपोज सेकेंडरी स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं तो हम ऐसी ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं जो x y के साथ काम कर रहा है और y z के साथ काम कर रहा है.
यानी कि फिर इसका मतलब x और z भी कहाँ है, वो सेम लोकेलिटी में. सो दिस इंप्लाइज x वर्क with z. So it is transitive. क्यों कंडीशन क्या है हमारी ट्रांजिटिविटी की, x related to y and y related to z. This implies x related to z. This is all the three conditions are following. So this I have written here. So remaining part I will explain you by orally. Just see, x and y live in the same locality, है ना, same locality या same place, both are the same solution will be. And the C part है, x is exactly 7 centimeter taller than y. So no one can be taller than himself. So it is not reflective. है ना, कोई भी अपने से बड़ा नहीं हो सकता लेंथ में. ठीक है, तो it is not reflexive because x is not related to x. Similarly, if x is greater than y 7 centimeter, then y cannot be greater than 7 centimeter by x. अगर x y से बड़ा है तो y x से छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, तो it is not symmetric. Similarly, if x is exactly 7 centimeter taller by y and y is also 7 centimeter taller than z, so x will be 14 centimeter taller than z. है ना, it will not be 7 centimeter taller than z. So it is also not transitive. यानी कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो हम जो चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है. पहले में हम जो देख रहे थे, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती, दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है यहाँ पर और तीसरे भी फॉलो हो रहा था. यहाँ पे दोनों कंडीशन ही फुलफिल हो रही है, रिजल्ट जो हम चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आया. रिजल्ट 7 सेंटीमीटर की जगह 14 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए हम इसको है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे एज ए ट्रांजिटिव. डी पार्ट है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, so no one can be a wife of himself, so it is not reflexive. If x is a wife of y, so y cannot be a wife of x, he will be husband. X is a father of y, so y cannot be a father of x, so it is not, sorry, तो इसमें ट्रांजिटिव देखो, सॉरी डी वाला पार्ट जस्ट आई एम शोइंग यू ट्रांजिटिविटी. देखिए x is a wife of y, x is a wife of y. ठीक है, तो y, the y, what is y? Y is a male, so y cannot be a wife of, y cannot be wife of z. तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. भाई जो दो कंडीशन है कि x रिलेटेड टू y होना चाहिए, y रिलेटेड टू z होना चाहिए, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो है ट्रांजिटिव एक्सेप्ट करेंगे. ट्रांजिटिविटी क्योंकि यहाँ पर फेलियर नहीं हो रही है. अरे बात समझ में. देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, आपको समझने की चीज ये है कि दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती तब थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, देन वी विल से दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर था, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर था, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन x z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो रहा था लेकिन 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो रहा था. यहाँ पर क्या हो रहा है, x जो है y की वाइफ हो रहा है, लेकिन y तो x की z की वाइफ हो ही नहीं सकता क्योंकि y इज ए मेल. तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो हम इसको यहाँ पर ट्रांजिटिविटी फेलियर नहीं हो रही है, सो इट इज ट्रांजिटिव. सो इट इज ट्रांजिटिव. ठीक है, बोलो. हो सकता है कि आपकी बुक में आंसर में गलत दिया हो, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है नहीं आप भी ये बताओ आप, कि हमारे पास जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल होने के बाद हम चेक करेंगे कि वो फेल हो रही है या नहीं हो रही है. अगर फेल होती है तब हम कहेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, और कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है तो हम उसको जो है ना एज ए ट्रांजिटिव एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, ई क्या है, x इज ए फादर ऑफ y, तो y कैन नॉट बी ए फादर ऑफ x. तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ना ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कोई अपना फादर नहीं हो सकता. ठीक है, सिमिलरली x अगर y का फादर है, y
z का फादर है, कंडीशन तो दोनों फुलफिल हो रही है ना। तो x क्या होगा, z का ग्रैंडफादर होगा, ना कि फादर होगा, है ना। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में देखो ट्रांजिटिव हो रहा था, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वाइफ वाला है, ये हमने सॉरी ट्रांजिटिव नहीं हो रहा था, सिर्फ यही वाला पार्ट जो है ट्रांजिटिव हुआ है, जो कि देखने में आपको और लग रहा होगा। ठीक है, बोलो। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दे हैव डिफाइंड द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी such that a is less than b square. This relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. हमें क्या प्रूव करना है, neither reflexive nor symmetric nor transitive। देखिए जनरली जो नंबर्स होती हैं वो अपने स्क्वायर से छोटी ही होती हैं, जैसे 5 लिया, 5 इज लेस देन 5 स्क्वायर। ठीक है, -5 लेंगे, -5 इज आल्सो लेस देन 5 स्क्वायर, मगर द नंबर विच आर इन फ्रैक्शन दे आर नॉट लेस देन। सपोज करिए हम लेते हैं 0.1, 0.1। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 0.01, बट 0.1 इज नॉट लेस देन 0.01। तो 0.1 यानी कि a इज नॉट रिलेटेड टू a। अगर हमें ये प्रूव करना है कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो वी नीड टू गिव वन एग्जांपल। ठीक है, इट मे बी ट्रू फॉर फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर्स, बट इफ इट इज नॉट ट्रू फॉर वन नंबर, देन वी विल नॉट एक्सेप्ट एज ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यू कैन गिव सो मेनी एग्जाम्पल, 1/2, 1/3, 1/5. These are the number in fraction. The square of these numbers will be less than the number. Now for symmetric, it is not reflexive. ठीक है, for symmetric, just you see that 2 is less than 1 is less than 2 square, but 2 is not less than 1 square. देखिए 1 अगर हम लेते हैं 1 4 से छोटा होता है, मगर 2 जो है 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो क्या हुआ, इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग प्रॉपरली बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन, नाउ यू हैव केम टू नो हाउ वी हैव टू राइट। फॉर ट्रांजिटिविटी, जब जस्ट गिव द एग्जांपल फॉर स्क्वायर, suppose we take any number, suppose -1 is less than 2 square, and 2 is less than not 2. Just change the example. (24) is less than 5 square, 5 is less than 3 square, but 24 is not less than 3 square. You can form different examples which can prove, we have to prove neither reflexive nor symmetric nor transitive. I have taken this example because we know that the square of 5 is 25, it is 24 is less than 25. 5 is less than 3 square, but 24 is not less than 3 square. So we have proved that is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So forming the example, it is not an easy task. It is a difficult. You have to think too much, then you will be able to get your solution. But I gave you some example. I gave you only one example. The remaining you can form by yourself. Okay, third question. Third question में they have given a set whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है,
R equal to AB such that B equal to A plus 1. ठीक है, see we have to check that is it reflexive, symmetric or transitive. So just check by these. They have given the you rule. Just form the ordered pair because it will be more clear by making the ordered pair. If we put A is equal to 1, we will get the 2. If we put A is equal to 2, we get the 3. If we put 3, we will put 4. If we put 4, we will get 5. If we put 5, we will get 6. If we put 6, we will get 7 and so on. ठीक है, ये हमने ये जो रोस्टर फॉर्म में हमने लिख लिया है. यहाँ पर आप देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है नहीं है. अगर नहीं है, चाहे सबके लिए हो नहीं हो, हमें कहते एक ही अगर हमारा फॉल्स हो जाता है, 1 is not related to 1, so it is not reflexive. ठीक है, if 1 is related to 2 but 2 is not related to 1, so it is not symmetric. ठीक है, अगर हमारे पास एक भी एग्जाम्पल मिल जाता है जो कि फॉल्स प्रूव कर सकता है, तो हम उसको फॉल्स ही एक्सेप्ट करेंगे. ट्रू हम जब भी एक्सेप्ट करेंगे जो सबके लिए ट्रू हो. यहाँ पर आप देखिए 1 is related to 2 and 2 is related to 3. As we are reading here, 1 is related to 2 and 2 is related to 3. This implies here 1 is related to 3. यहाँ पर 1 3 is available? No. So it is not transitive also. This relation neither reflexive nor symmetric nor transitive. So we have proved that it is not a reflexive, not symmetric, not transitive. Now we am taking the next example. Question number 4. Show that R equal to AB such that A is less than B is reflexive and transitive but not. ये reflexive है and transitive है लेकिन symmetric नहीं है. देखो यहाँ पर बेटे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये less than का भी है और equal भी है. तो हर नंबर अपने से छोटी भले ही ना हो मगर इक्वल हो सकती है. यहाँ पे दोनों है, A equal to A. इसका मतलब क्या होता है, A is less than, अगर we have written A is less than B, तो A equal to B also और A equal to less than B also. दोनों ही ऑप्शन लेने पड़ते हैं. और तो दोनों के लिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे A लेते हैं तो A के बराबर तो हो ही जाएगा, छोटा भला ही ना. तो ये क्या है, इट इज रिफ्लेक्टिव. ठीक है, अगर हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, अगर A B से छोटा है, बराबर वाला केस तो रिफ्लेक्सिव में लेना है. अगर A B से छोटा है तो B कैन नॉट बी लेस देन A. इसका मतलब क्या है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है. थर्ड क्या है, ट्रांजिटिविटी A is less than B and B is less than C. This implies A is less than C. इसका मतलब क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव है. यही हमें प्रूव करना था. द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, A अगर B से छोटी है, B अगर C से छोटी है, तो डेफिनेटली A क्या होगी, वो C से छोटी होगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ. R equal to, they have mentioned AB such that A is less than BQ. We have to is reflexive, symmetric or transitive. We have to check. हमें क्या है, तीनों चीजें चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई भी फ्रैक्शन नंबर लेते हैं, उनका स्क्वायर है वो उसी नंबर से छोटा हो जाता है. जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, क्यूब जो होगा वो भी सेम चीज है. अगर हम मैं जो है 1/3 लेता हूँ, 1/3 का क्यूब करते हैं अगर हम, ठीक है, 1/27. 1/27 इट इज ए स्मॉलर नंबर, यानी कि कोई भी नंबर, ठीक है,
छोटी नहीं होगी जो फ्रैक्शन वाली नंबर है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फ्रैक्शन में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो 0.1 लिया था हमने उसमें एग्जाम्पल, इसमें भी 0.1 लेते हैं अगर आप, 0.1 का क्यूब कितना हो जाएगा 0.001, ठीक है 0.01 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, इट विल बी मोर स्मॉलर देन दैट वन, तो 0.1 इज नॉट लेस देन 0.01, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए, जस्ट ऑब्जर्व, सिमेट्रिक के लिए अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया सपोज करिए -1 लिया, 1 इज लेस देन 2 क्यूब, 2 इज लेस देन 1 क्यूब, नो, है ना, 1 इज लेस देन 2 क्यूब, यानी कि 1 अगर 8 से छोटा है, ठीक है, तो 2 किससे छोटा होना चाहिए 1 के क्यूब से, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिमेट्रिविटी भी फेल हो रही है, ठीक है। फोर ट्रांजिटिविटी अगर हम चेक करते हैं, फोर ट्रांजिटिविटी के लिए आप देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करिए 100 लिया, 100 इज लेस देन 5 क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब कितना होगा 125, 100 अगर 125 से छोटा है, ठीक है, और 5 सपोज करिए 2 के क्यूब से छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा 100 इज क्या 2 के क्यू से छोटा होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये तो क्या है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बनाना चाहें तो आप आराम से बना सकते हैं, बस आपको इस रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम के समय में, ठीक है, बहुत सारी चीजें कुछ याद भी रखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें जो है आप याद नहीं रखनी पड़ती है, आप सोल्व कर सकते हो। ये चीज ऐसी है कि है ना, आपको पहले से कंफर्म होना चाहिए कि क्यू वाला जो है ट्रांजिटिव नहीं होता, है ना। और उसको सोल्व कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम दूसरा लेना चाहें, दूसरा ले सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने ले लिया, जैसे 5 का क्यू लिया था, 4 का क्यू कितना होगा 64 होगा, तो 64 की जगह मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 64 से, सॉरी 4 का क्यू लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 50 ले लिया, 50 मत लो, चलो 50 ले लो, कोई बात नहीं, 50 लेस देन 4 क्यू, एंड 4 मत लो, कोई और नंबर लेनी पड़ेगी, 4 की जगह 4 का 4 64 लेते हैं अगर हम 60, चलो और क्लोज चले जाते हैं, कोई और नंबर लेके देखते हैं, 64 अगर हमने लिया 4 का क्यूब, यहाँ पे मैंने ये सपोज करो 63 ले लिया, 63 और 4 इज लेस देन 1 का क्यूब, 1 का क्यूब ले लो, चलो कोई नहीं, क्या 63 1 के क्यूब से छोटा है, नहीं है, है ना, तो देखो ये एक एग्जांपल और बन गया, 63 4 के क्यूब से छोटा है, 4 1 के क्यूब से छोटा है, नहीं 4 1 के क्यूब से छोटा नहीं है, यानी कि यू हैव टू चेंज, यू हैव टू टेक द बिग नंबर, आई थिंक 100 से है ना 5 क्यू ले रहे हैं ना, इससे हमें बड़ी नंबर लेनी पड़ेगी, या तो 6 का क्यू लेना पड़ेगा, तब हमें है ना सही एग्जाम्पल बनेगा, यानी कि अगर हम 6 का क्यू लेते हैं, 6 का क्यू होता है 216, यहाँ मैंने क्या ले लिया 200 ले लिया, और 6 क्या हो गया, यहाँ हमने लिया था 5, 6 इज लेस देन, ठीक तो ले रहे थे पहले भी, ठीक ले रहे थे यार, 3 का क्यूब हो गया, ठीक है, 200 क्या होगा इज नॉट लेस देन 3 क्यूब, ये भी ठीक है, पहले भी ठीक लिया था, कहीं कंफ्यूजन हो गया मेरे को, 200 लेस देन 6 क्यूब, 6 इज लेस देन 3 क्यूब, एंड 200 इज नॉट लेस देन 3 क्यूब, तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, इसमें थोड़ी कंसल्टेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, फिर आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है, या जस्ट दीज वर द difficult question which I have told you, which you generally student get the confusion more. Now I am taking the question number 6. हेमकर सर, हेमकर सर, Yes sir. जो कोई हाँ सर बोलो। डाउट सवाल लेना एक बार, बच्चों Yes, के sir? डाउट। ठीक है सर, बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन अपने डूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पूछ सकते हो। हेलो हेलो बेटा, एनी डाउट? No, sir. समझ में आ गया ये? अरे समझ में आया नहीं आया? आगे सर। Yes, sir, आ गया। लग तो नहीं रहा तुम्हारी आवाज।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, सोच लो अच्छी तरीके से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो नहीं लिखा हुआ है वो भी पूछ सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल कैसे बनाया ये समझ में आया? मतलब आपको ये चेक करना है टारगेटिव अगर फेल करनी है, फेल होनी है, या फेल जब होगी जब ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, फिर ए का रिलेशन सी के साथ नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी 2 मिनट और रुक जाओ। हाँ ये संजय सर बंद कर दें इसको, चलो सर क्लोज कर दो कोई।